أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان اپنے حفظ و کرم سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اپنے حفظ و کرم سے رکھے۔ میرے پاکستانیوں، آج کیا تاریخ ہے؟ 26 نومبر۔ اور 26 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ اس سال نہیں، پچھلے سال۔ اگر ہم پچھلے سال آپ کو لے کے جائیں، آپ کا مائنڈ پچھلے سال کے اندر ڈالیں، 26 نومبر، 24 نومبر، اس اسٹوری کو کنٹینیو کرتے۔ 24 نومبر عمران خان کال دیتے ہیں نومبر کے شروع کے اندر کہ ہم نے فائنل کال، یہ ڈو اینڈ ڈائی کال تھی۔ علی امین گنڈاپور سی ایم کے پی کے تھا، وزیر اعلیٰ کے پی کے تھا۔ عمران خان نے اس کے اوپر یقین کر کے اس کو کہا تھا کہ آپ نے یہ ڈو اینڈ ڈائی کا میچ ہے، آپ نے بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو لڑنا ہے، اس کو آخری مرحلے میں لے کے جانا ہے، آخری نتائج کے اندر لے کے جانا ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور بیچ سے فرار ہو گیا بشریٰ بیوی کو لے کے۔ لیکن ہم اس اسٹوری کے اوپر جانے سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ہوا تھا 26 نومبر، جس کو ہم ثانیہ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم میسکیئر کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ کے اندر لکھا جائے گا اور اس کو کبھی بھولا نہیں جائے گا، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور ان کو بار بار یاد دلایا جائے گا جو اس کے پیچھے ملوث تھے، جنہوں نے یہ پورا ثانیہ، یہ پورا میسکیئر کروایا تھا۔ لیکن اس کے اوپر ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے آئے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، 24 نومبر عمران خان نے فائنل کال دی تھی، ڈو اینڈ ڈائی کال دی تھی کہ ہم نے پورے پاکستان سے، آپ نے پورے پاکستان سے قافلے لے کے ڈی چوک اسلام آباد پہنچنا ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان کی خاطر، اس ملک کی آزادی کی خاطر، انقلاب کی خاطر آپ نے ڈی چوک اسلام آباد پہنچنا ہے۔ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، گلگت ہو، کشمیر ہو، کوئی بھی پاکستان کا ایسا نہیں تھا جہاں سے عوام نے عمران خان کی فائنل کال کو ریئیکٹ نہ دیا ہو۔ اگر ہم دیکھیں، جب عمران خان نے یہ فائنل کال دی تھی 24 نومبر کی، تو پورا پاکستان بند کر دیا گیا تھا، پورے پاکستان کے اندر کنٹینر لگا دیے گئے تھے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا، سب کچھ پاکستان کے اندر ظلم و زبر بڑھا دیا گیا تھا، عوام کے لیے مزید پریشانیاں اور مشکلات پریشانیاں مزید بڑھا دی گئی تھی، کنٹینر لگا دیے گئے تھے اسلام آباد، پنجاب کے علاقوں کے اندر، ادھر کنٹینر لگا کے نافذ کر دیا گیا تھا، پولیس کو تعینات کر دیا گیا تھا، پاکستان کے رینجرز کو تعینات کر دیا گیا تھا، پاکستان کی آرمی کو تعینات کر دیا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان نے فائنل کال دی ہے، آپ نے ان قافلوں کو روکنا ہے، آپ نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دینا۔ تو یہ ہوا تھا۔ لیکن میرے پاکستانیوں، یہ تو اپنے پاکستانی تھے جن کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ بندوقیں لیتے ہیں، جن کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ٹوپیاں وغیرہ، کپڑے وغیرہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ انہی پاکستانی 24 کروڑ عوام کے پر انہوں نے گولیاں برسائی، انہی عوام کے پر سنائپر کے ساتھ فلیٹ کے پر کھڑے ہو کے، عمارتوں کے پر کھڑے ہو کے، بندوقیں تیار کر کے، سنائپر تیار کر کے، نشانہ لے کے پاکستانی قوم کا خون بہایا کیا، معصوم لوگوں کا خون بہایا کیا۔ تو اس کے اندر کون ملوث تھا؟ یہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، ان کو اس کی معافی نہیں ملے گی۔ یہ جتنے بڑے ان کا قد بڑا ہو جائے، جتنی یزیدیت فرونیت کریں، کر کے دیکھ لیں، لیکن اس کا حساب کتاب ان کو حال میں دینا پڑے گا۔ میرے پاکستانیوں، پورا پاکستان بند کر دیا۔ صرف عمران خان نے کال دی تھی کہ آپ نے نکلنا ہے پورے پاکستان سے، ڈی چوک آپ نے پہنچنا ہے، یہ ڈی چوک آپ کا لاسٹ مشن ہے، آپ نے یہاں آ کے پہنچنا اور یہاں آ کے آپ نے فائنل کال دینی ہے کہ کیسے قافلے نکلتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں سندھ سے قافلے نکلتے ہیں، علیم عادل شیخ کی ترجمانی کے اندر پہ پنجاب سے قافلے نکلتے ہیں۔ پنجاب کے جو قافلے تھے وہ نہیں پہنچ پائے کیونکہ پوری جو جعلی وزیر اعلیٰ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پوری کوشش کی کنٹینر لگا کے پنجاب پولیس کو طلب کر کے کہ آپ نے ان کو اسلام آباد کی طرف جانے نہیں دینا۔ تو یہ ہوا، دھمکیاں حکومت کی طرف سے مل رہی تھی کہ آپ اٹک پور کراس کر کے دکھائیں، ہم آپ کو مان لیں کہ پی ٹی آئی نے اٹک پور کراس کر کے دکھایا، اور ان کی جو دھمکیاں تھی، تھریٹ تھی، وہ زمین پوش ہو گئی۔ یہ قافلے آئے ڈی چوک اسلام آباد کی طرف، یہ بڑھ رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ 25 نومبر، 2-3 دن عوام تھکی ہوئی تھی، جو قافلے عمران خان کی کال کے پر جنہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، وہ جو قافلے عوام آئی تھی، اس کے اندر نوجوان، مائیں بہنیں، بچے، بوڑھے، سب لوگ اس کے اندر ملوث تھے، اور عمران خان کی کال کے پر انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا۔ تو یہ قافلے جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے اسلام آباد ڈی چوک کی طرف۔ جب یہ اسلام آباد ڈی چوک کی طرف یہ قافلے بڑھ رہے تھے، تو اس وقت جب سندھ سے قافلے آتے، کے پی کے سے قافلے آتے، سندھ سے قافلے کے پر سندھ پولیس نے فائرنگ کی، ان کے پر مکمل طور کے پر انہوں نے اپنے کنڈے استعمال کیے، فائرنگ کی، لوگوں کو مارنے کی، ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ میرے سامنے والے گھر کے سامنے، میرے
पीटीआई के लीडर रहते हैं। पूरी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई है कि किस तरह जब वो सिंध को क्रॉस करते किस तरह सिंध पुलिस ने उनको रोकने की, उनके काफिले को रोकने की भरपूर कोशिश की। जब हम नहीं रुके तो उन्होंने हमारे पर गोलियां बरसाई, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, हमें शहीद करने की, हमारा खून बहाने की कोशिश की। ये सिंध पुलिस सबसे घटिया पुलिस है पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं। सिंध पुलिस उठा के देख लो, फिर पंजाब पुलिस आती है, के पुलिस इसके अंदर नहीं मुलविस इतनी जितनी सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस मुलविस है लोगों के कत्लेआम के अंदर। ये शैतानियाँ, इनका जो शैतान वाला दिमाग है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर मुलविस सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस है, जो ये सब कुछ उठा रहा। लेकिन ये फिर काफिले नहीं रोक पाए और ये सारे काफिले डी चौक इस्लामाबाद की तरफ जाते रहे और इनको रोकना नामुमकिन था। लेकिन इनके पास एक अरबा था कि हमने गोलियां उठानी है। इन्होंने सारे अरबे इस्तेमाल कर लिए, कंटेनर लगा दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, इन्होंने ओपन शेलिंग कर दी। पंजाब पुलिस के पुलिस सारी पुलिसों को जमा करके आवाम के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन ये अरबा भी ये इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो फिर मोहसिन नकवी आता है टीवी के ऊपर और धमकियाँ देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपके पास डेडलाइन हो देता है कि हम आपको डेडलाइन देते हैं, आपने अपना काफिला वापसी लेके जाए, अगर नहीं लेके गए तो हम आपको ओपनली कत्लेआम करेंगे, ओपनली आपका खून बहाएंगे, आपका खून बहाएंगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सीधी दहशतगर्दी है जो इस पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम के साथ कर रहे हैं। ये आपके अपने वारिस हैं, ये आपके अपने लोग हैं जिनके ऊपर आपने 26 नवंबर 2024 के अंदर गोलियां बरसाई, उनके ऊपर मैसकेयर किया, उनके ऊपर ओपन फायरिंग डुराई गई, उनके ऊपर ओपन फायरिंग करके उनका खून बह के। ये आपके अपने लोग हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान या भारत से आए हुए या इसराइल से आए हुए लोग नहीं थे। ये अपने आप के लोग थे जिनके पैसों की पारी आप ये बंदूकें लेते हैं, ये टोपियां लेते हैं, अयाशियाँ करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं। आपने उन्हीं के ऊपर गोलियां चला दी, तो आपके हकूक, आपके राइट कहाँ चले गए? आप कहाँ, आपकी उस वक्त अकल, आपकी उस वक्त ज़हनियत कहाँ मर गई थी जो आप अपने आप को बड़ा डिस्कस करते हैं कि हम एक रियासत हैं और ऐसा रियासत हम सारे अपने अरबे इस्तेमाल करेंगे। रियासत ऐसे करती है, रियासत तो माँ की तरह होती है, लेकिन आपने माँ वाला रोल अदा नहीं किया। आपने दहशतगर्दों वाला रोल अदा किया और अपने मासूम शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई, उनको शहीद किया, उनका खून बहाया। और आपने एक जवाब दिया कि जो भी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर निकलेगा अपने हकूक, अपने राइट के लिए, उसके ऊपर गोलियां बरसाई जाएंगी, उसका खून बहाया जाएगा, उसको अपने हकूक, अपने राइट के लिए पाकिस्तान की सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए। ये आपने आवाम के अंदर खौफ पैदा किया। लेकिन यजीद भी ये करता था, फ़िरौन भी ये करता था, उससे भी अपने आप को गुनाह डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन फिर उनका क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। हज़रत इमाम हुसैन का हमने चैप्टर खोल के अभी भी रखा हुआ है और ये खुला रहेगा क़यामत तक, इसको भूला नहीं जाएगा। हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल को सुकून पहुंचता है कि हज़रत इमाम हुसैन भी यजीद की आंखों में आंखें डाल के उसकी बैत कबूल नहीं की थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला किया था और कहा था कि मैं तुम्हारी यजीदियत बैत कबूल नहीं करूँगा, और अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान करवा दिया था। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे 24 करोड़ आवाम पाकिस्तानियों, मेरे नौजवान, मेरी माएँ बहनों, मेरे नौजवान, मेरे बूढ़े भाइयों, आप लोगों ने भी घबराना नहीं है। ये मुश्किल वक्त ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह। इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा। इमरान खान जेल के अंदर क्यों बंद है? मेरे मुल्क की खातिर, मेरे पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क के आइन और कानून की खातिर, इस मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, मेरे और मेरे मुस्तकबिल के नौजवानों के मुस्तकबिल की खातिर इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर बंद है। इमरान खान जो 24 नवंबर और 26 नवंबर की जो बीच रातें थी, इसके अंदर भरपूर कोशिश की गई कि इमरान खान के पास जेल में लोग गए, पीटीआई के लीडर्स गए, पीटीआई के वकील गए, बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत, ये जो सीनियर जो लोग थे, जो इस्टेटमेंट के बहुत नज़दीक लोग थे, वो गए जेल के अंदर इमरान खान से डील करने के लिए कि हम आपको छोड़ देते। ये डील भी हो गई थी कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए या बिस्तर सैफ जो तर्जुमान था KPK का, अली अमीन गंडापुर का तर्जुमान था, जो इस्टेटमेंट का बड़ा नज़दीक इंसान था, वो गया इमरान खान के पास, जेल के अंदर बैठ गया कि हम आपको छोड़ने को लिए तैयार हैं। इमरान खान के साथ डील हो गई थी, इमरान खान को ये छोड़ने के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि मेरी रिहाई को छोड़ो, मेरे जो बाकी नाहक कैदियों को जेलों के अंदर बंद किया हुआ है, सबसे पहले उनको छोड़ो, फिर मुझे छोड़ना। पहले मेरे ऊपर बात ना करो, पहले मेरे लोगों को छोड़ो जिनके ऊपर तुमने जुल्म ज़बर किया, जिनको तुमने पकड़ के नाजायज़ तरीके से सिर्फ सियासी पॉलिटिक्स उनके ऊपर मुकदमा बना के उनको जेलों में डाला हुआ है, पहले उनको रिहा करो, फिर मेरे ऊपर मेरी रिहाई की पाना है। सबसे पहले उनको जाके रिहा करो, फिर मैं रिहा होऊंगा। मैं पहले रिहा नहीं होऊंगा, पहले मेरे लोगों को रिहा करो। मुझे अपने लोगों की फिक्र है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं पूरी ज़िंदगी भी जेल के अंदर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे मासूम लोगों को रिहा करो जिनको तुमने जेलों के अंदर बंद किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो इमरान अहमद खान नियाज़ी और मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये डील हो गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, इमरान खान ने इनके मुंह के पर मारा कि मैं आपके साथ डील नहीं करूँगा। मैं इसलिए जेल के अंदर नहीं आया कि मैं आपके साथ डील करूँ। इमरान
इमरान खान बार बार ही कह चुके हैं कि मैं अगर जेल से बाहर आऊँगा तो मैं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आऊँगा, इस और कोई तरीका मैं अपना के बाहर नहीं आऊँगा, कोई झूठे पकड़ के या माफ़ी मांग के मैंने जेल से बाहर नहीं आना, मैं अदालतों के ज़रिए इंसाफ लेके अपने केसेस जो झूठे केसेस बनाए गए उनका मुकदमा लड़ के उनका मुकाबला करके जेल से बाहर आऊँगा और कोई डील के नतीजे जेल से बाहर नहीं आऊँगा। पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर रहने को तैयार हूँ लेकिन किसी की यजीदियत फ़ौनियत कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। ये इमरान अहमद खान नियाज़ी ने साफ एंड क्लीन एंड क्लियर कितनी मरतबा ये मैसेज ये पैगाम पहुँचा दिया है पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को, लेकिन तो फिर डील नहीं हुई। फिर मुस्कुराती हुए 24 और 26 नवंबर के जो रातें थी उसमें इमरान खान के साथ जो मुस्कुराते डायलॉग्स थे वो फेल हो चुके थे। इमरान खान ने बेच दिया था पीटीआई के लीडर्स को, वकीलों को, जो इमरान खान के पास ये डील लेके गए थे कि आप ये डील मान ले, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मेरे पहले लोगों को रिहा करो फिर मेरी रिहाई की पढ़ाना। लेकिन फिर ये डील नहीं हुई। फिर 26 नवंबर को मोहसिन नकवी आता है। मोहसिन नकवी कहता है कि अपने लोगों को लो और वापसी जाओ, ये डी चौक के ऊपर प्रोटेस्ट को ख़त्म करो, इसको फिनिश करो। फिर नहीं हुआ, फिर नहीं माना कि अली अमीन गंडापुर 5-4 बजे ये इवनिंग के टाइम ये इस्लामाबाद की तरफ, ये डी चौक की तरफ ये काफिला पहुंच जाता है। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीवी वहाँ आखिरी टाइम आखिरी स्पीच करते हैं। उस 4-5 बजे के बाद अली अमीन गंडापुर समेत सारी पीटीआई की लीडरशिप गायब हो जाती है। कोई आपको ग्राउंड के ऊपर आवाम के साथ जिनको ये लाए हैं, जिनको इमरान खान के हुक्म के ऊपर, इमरान खान के कहने के ऊपर लाया गया है, उनको छोड़ के ये बीच रास्ते से निकल जाते हैं और पता ही नहीं होता कि पीटीआई की लीडरशिप कहाँ गायब हो गई है। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी थी, ये इनकी सबसे बड़ी जिल्लत थी कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़, उनको चूंटिया बनाया। यही था, यही इनकी असल नाकामी थी। अगर ये वहाँ खड़े हो जाते, मुकाबला करते फसादियत और जुल्म ज़बर का, तो आज इमरान खान हम सब के दरमियान मौजूद होता। और इमरान खान के ऊपर जो आज जुल्म ज़बर हो रहा है, पिछले 23 दिनों के इमरान खान से उनकी किसी वकील, किसी फैमिली मेम्बर्स, उनकी मुलाकात ही करवाई जा रही है। अगर आज उस वक्त अली अमीन गंडापुर डर जाता, उस वक्त अगर पीटीआई की लीडरशिप, एमएनएस, एमपीएस टिकट ऑर्डर निकल आते, तो आज इमरान खान हम सब के दरमियान मौजूद होता और यह आज मुल्क आगे बढ़ रहा होता, अपने पाँव पर खड़ा होता। लेकिन उस वक्त अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के पेट के अंदर चौड़ा कौम के उससे स्टैटमेंट के झूठे पॉलिश करने निकल के, और पीटीआई की लीडरशिप भी झूठे पॉलिश करने निकल गई और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कदम नहीं उठाया। डी चौक पहुंच के 3 मरतबा अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचा। इससे पहले नवंबर से पहले 26 नवंबर से पहले भी 3 मरतबा अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचा। इमरान खान ने उसके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, लेकिन अली अमीन गंडापुर फ्रॉडी बीच से निकल गया। वो इमरान खान की रिहाई को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया और बीच पतली गली से निकल के अपनी जान को बचा लिया। अली अमीन गंडापुर को चाहिए था कि वहाँ खड़े होकर डट के मुकाबला करता, अपने लोगों के साथ खड़ा होता और इनको बताता कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने, चौड़ा कौम के पीटीआई की लीडरशिप ने, चौड़ा कौम के इमरान खान के साथ गद्दारी की। तो फिर ये हुआ। फिर जब ये हुआ तो फिर पूरा दिन 4-5 बजे के बाद 26 नवंबर को ये अली अमीन गंडापुर गायब हो गया। पूरी पीटीआई की लीडरशिप कोई ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं था, सिर्फ आवाम थी। आवाम पूछ रही थी कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हो, बाहर निकलो। अली अमीन गंडापुर एक वाकया हुआ था कि बीच में रात के दिन अली अमीन गंडापुर गाड़ी से बाहर निकला था तो आवाम ने उसको जूते मारे थे, आवाम उसके ऊपर बोतल फेंक रही थी, आवाम उसके ऊपर नारे लगाए थे कि अली अमीन गंडापुर क्यों चुप चुप के बैठे हुए हो, हमें आके लीड करो, हमें बताओ कि अब हमने क्या करना है, आगे का प्लान बताओ। तो अली अमीन गंडापुर के पास तो आगे का कोई प्लान ही नहीं था। एक सीएम के ओडे के पर इमरान खान ने उसको नामजद किया था कि आप के वज़ीर आला हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वो अपनी तर्जुमानी पूरी नहीं की, उससे अपनी तर्जुमानी कंप्लीट नहीं की, उससे इमरान खान के साथ धोखेबाजी की। पाकिस्तानी कौम जिनको वो अपने साथ लाया था डी चौक तक, उनके साथ गद्दारी करके उनको बीच रास्ते छोड़ के पतली गली से निकल गया। अगर अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की लीडर से वहाँ डट जाती, मुकाबला करती, तो आज इमरान खान बाहर होता और ये जो 26 नवंबर को मैसेकर हुआ ये कभी भी नहीं होता और ये कभी भी ऐसा ना होता जो ये अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की लीडरशिप की नाकामी की वजह से हुआ है। तो फिर ये सब कुछ हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर पूरा प्लान मोहसिन नकवी ने धमकी लगाई। फिर ये हुआ कि जैसी रात हुई 10, 11, 12 बजे तो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। क्या स्नाइपर समेत ऊपर बैठे लोगों ने स्नाइपर के समेत बंदूकों के साथ तैयारी पकड़ के रखी थी कि हमने इनके पर अटैक करना है, हमने इनके पर हमला करना है। और फिर इन्होंने इनके पर हमला किया पीटीआई के वर्कर्स के पर, उनके पर जो कोई केपीके से आया था, कोई सिंध से आया था, कोई बलूचिस्तान से आया था, कोई गिलगित से आया था, अलग अलग पाकिस्तान के मुकाम से लोग आए थे इमरान खान की कॉल के पर लब्बैक मानने। लेकिन फिर रात जैसी होती 26 नवंबर, जैसी अंधेरी रात होती 11 बजे 12 AM हो जाते हैं, तो फिर स्नाइपर लेके जो लोग बिल्डिंग्स के ऊपर बैठे बैठे, जो निशाना लेके बैठे बैठे अटैक करने के लिए
उनकी पूरी प्लानिंग थी, पूरी मनसूबा बनती थी। अली अमीन गंडापुर वहाँ से निकल जाता है, पूरी पीटीआई की लीडर से वहाँ से निकल जाती है, और जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो ग्राउंड के पर खड़े थे, वो यही जवाब करते कि अली अमीन गंडापुर एंड पीटीआई लीडरशिप कहाँ गुम हो गई है, वेयर दे आर लॉस्ट, वो हमारे दरमियान क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं कोई राय अमल दे रहे। तो वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। उस स्नाइपर लेके बिल्डिंग्स के पर लोग बैठे बैठे उन्होंने निशाना लेके रखा हुआ था, उन्होंने निशाना लेके रखा था कि हमने पीटीआई के वर्कर्स के पर अटैक करना है, उनकी पर गोलियां बरसानी है, ये 26 नवंबर का मैसेक्योर करना है। और ये 26 नवंबर का मैसेक्योर हुआ। 26 नवंबर को अवाम के ऊपर गोलियां बरसाई की, उनका खून बहाया किया, सिर्फ एक ऑर्डर के ऊपर, एक हुक्म के ऊपर। मोहसिन नकवी आके धमकियां देता है पाकिस्तानी कौम को, जिनकी पैसों की पर, जिनके टैक्स के पैसों की पर ये अयाशियाँ करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, ये बंदूकें लेते हैं, स्नाइपर लेते हैं, ये अयाशियाँ करते हैं, पीते हैं, डरते हैं, रहते हैं, उनके पैसों की पर इन्होंने उन्हीं आवाम की पर गोलियां बरसाई। ये दहशतगर्दी थे, ये इनके अपने लोग थे, एक सियासी पॉलिटिक के लोग थे, उनके पर इन्होंने गोलियां बरसाई, कोई दहशतगर्द नहीं थे। तो उनके पर गोलियां बरसाई की और इस्लामाबाद का मैसेक्योर हुआ, जिसको तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। और फिर क्या हुआ, ये तो मैसेक्योर हो गया, लोगों का खून बहाया क्या, लोगों की डेड बॉडी थी वो फैमिलीज को वापस नहीं दी गई। उनको कहा गया कि आपको हम आपकी डेड बॉडी वापस देंगे, लेकिन आपने अपने मुंह के पर ताले लगा के रखना है। एक बंदा जो मरते वक्त लिख के गया अपने खून से कैदी नंबर 804, जब ये 24 नवंबर का मैसेक्योर हुआ, एक बंदा